My dear students, welcome to another session of decision making for ZAT. चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं. अच्छा, टुवर्ड्स द एंड आई विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग बिकॉज कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चंस में डाउट रहता है और उन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें इंपॉर्टेंट समझनी ज़रूरी हैं. सो विल डिस्कस दैट टुवर्ड्स द एंड. पहले अपने सेशंस के कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं. सो दिस इज फर्स्ट सेट 2 क्वेश्चंस का. Let us read that first from ZAT 2017. Vimla is a domestic help for Shreya and her neighbor Padma. Vimla is a domestic help for Shreya and her neighbor Padma. Both live in a posh gated community. Vimla not only cleans the house but also cooks for both the families. Shreya treasures Vimla ever since she has joined the family 4 years ago. Vimla joined Padma's household this year. ठीक है. सो डोमेस्टिक हेल्प है श्रेया के लिए और पद्मा के लिए. पद्मा नेबर है उसकी और दोनों ही पॉश गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं. विमला नॉट ओनली क्लीन्स द हाउस बट ऑल्सो कुक्स. श्रेया टेजेस विमला एवर सिंस शी जॉइंड हर फैमिली 4 years ago. विमला ऑल्सो जॉइंड पद्मा's household this year. Okay. One evening, Shreya, trying to pay the pizza delivery, was surprised to find a few 500 rupee notes missing from her purse that she was sure were there earlier. She wants to ascertain if someone has stolen the money. On reflecting, the following facts crossed her mind. So there are 5 facts that are given. Okay. First is, in the last 1 year, Shreya had noticed cash missing on 3 occasions. In the last 1 year. Second, Shreya's husband also shared that a few notes were missing from his wallet and he was not sure if they were stolen. Third fact is, her elder son had been pestering Shreya for more pocket money for last 3 weeks, but in the last few days he had stopped doing so. Fourth is, in the last 1 year, Vimla had received 6 mails from her family asking for money, letters. And fifth is, her elder son's expenditure had gone up in the last few days. These are 5 facts that have crossed her mind. ठीक है. और श्रेया के घर में Vimla is working since last 4 years. So which of the following combinations of the above statements would decrease the likelihood that Vimla has stolen the money? So अगर likelihood हमें decrease करना है इस बात का that Vimla has stolen the money, which implies कि या तो somehow कोई reasoning मिल जाए कि जिस वजह से कि we know that possibly Vimla has not stolen it or somebody else has stolen it. या तो हमें कोई likelihood ऐसा मिल जाए जिससे कि we are almost certain that Vimla has not stolen the money or somebody else has stolen the money. इसके लिए हमें possibility मिल जाए तो Vimla से वो blame shift हो जाएगा. Clear? So पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है, ऑप्शन नंबर A is saying 1 and 3. 1 is saying in the last 1 year Shreya had noticed cash missing on 3 occasions and 3 is saying her elder son had been pestering Shreya for more pocket money for the last 3 weeks. तो 1 में बात हो रही है लास्ट 1 ईयर की और 3 में बात हो रही है लास्ट 3 वीक्स की. इनकंसिस्टेंट है यानी कि पिछले लास्ट 1 ईयर में कैश 3 बार मिसिंग हुआ है, जबकि जो एल्डर सन है वो तो सिर्फ लास्ट 3 वीक्स में ही ज्यादा पॉकेट मनी मांग रहा है, विच इंप्लाइज कि इससे ब्लेम शिफ्ट नहीं होता है. इससे तो पॉसिबिलिटी इसी बात की बनती है दैट विमला माइट बी द वन हु स्टोल द मनी. सो ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर. इट इज नॉट डिक्रीजिंग द लाइक्लीहुड. ऑप्शन बी 1 and 4. 1 is saying last 1 year cash missing. 4 is saying in the last 1 year Vimla had received 6 mails. So 1 and 4 तो इनफैक्ट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड. सो दिस इज इंक्रीज इन लाइक्लीहुड. सो 4 इज डेफिनेटली नॉट द आंसर. इट्स क्वाइट द ऑपोजिट. ये तो इंक्रीज कर रहा है. बी इज डेफिनेटली नॉट द आंसर. सी 1 and 5. 1 लास्ट 1 ईयर कैश मिसिंग. 5 एल्डर सन्स एक्सपेंडिचर हैड गॉन अप इन लास्ट फ्यू डेज. अगेन लास्ट 1 ईयर की कहानी है और ये लास्ट फ्यू डेज की बात करें तो 1 and 5 का भी सिमिलर रीजनिंग है. ए और सी सिमिलर रीजनिंग से ये दोनों गलत होंगे. बोथ आर रॉन्ग बिकॉज पीरियड इनकंसिस्टेंट है. कैश मिसिंग हुआ है लास्ट 1 ईयर में 3 बार और जबकि जो सन की बात है वो या तो लास्ट 3 वीक्स की है या लास्ट फ्यू डेज की है. तो डेफिनेटली इससे हमारा ब्लेम शिफ्ट नहीं होता विमला से इसके एल्डर सन की तरफ. ऑप्शन डी 2 and 4. 2 is saying Shreya's husband also shared that a few notes were missing and 4 is saying in the last 1 year Vimla had received 6 mails. So same as B, D is also increasing the likelihood. So D is also not the answer. Option E is saying 3 and 5. 3 is saying
her elder son had been pestering Shreya for more pocket money for the last 3 weeks, and 5 is saying elder son's expenditure had gone up in the last few days. So E is most consistent, क्योंकि E में जो 3 और 5 दोनों ही ऑप्शंस क्लियरली मेंशन कर रहे हैं सेम टाइम पीरियड के बारे में, और फॉर द एल्डर सन दैट एल्डर सन माइट हैव टेकन द मनी. सो E is increasing the likelihood for her elder son and decreasing the likelihood for Vimla. Definitely our answer will be option E. Easy question. ठीक है, easy question. Isn't it so? ठीक है. Next one is saying Padma. Now we are on to the Padma scenario. तो Padma discovered some money missing from her purse. Padma का हाउस होल्ड तो विमला ने अभी 1 साल पहले ही ज्वाइन किया है, इसी साल ज्वाइन किया, इनफैक्ट 1 साल पहले भी किया. So Padma discovered some money missing. She suspects that Vimla has stolen it. She wants to prevent the stealing from happening again and is contemplating the following options. तो पर्पस क्या है उसका? She wants to prevent stealing from happening, होना भी यही चाहिए. बट यहाँ पे सस्पिशन है, कोई फैक्ट तो नहीं है. ठीक है, सस्पिशन है, डाउट है कि विमला ने शायद पैसा लिया होगा, स्टील किया होगा. एक्शंस है. एक्शन नंबर 1, शी शुड लेट इट पास सिंस टू err is human. She should confront Vimla and tell her that she knows the truth and the act is unpardonable regardless of her past service and she is thinking of terminating her services. Number 3, action. She should tell Vimla that she is aware someone has stolen the money from the house but is not sure who it is. Action number 4, she should share with Vimla that neighbors think Shimla has stolen the money. She does not, but is interested in finding out the truth. And action number 5, she should directly ask Vimla if she stole the money, promising her no punishment if she confesses. We have to arrange the following combination of actions in the decreasing order of appropriateness, which will be more appropriate, which will be less appropriate. ठीक है, so that is how we have to arrange them. First is she should let it pass since to err is human. पहली चीज तो ये है कि taking no action is never a solution तो नहीं है. दूसरी बात ये भी है कि she wants the stealing from happening again, she wants to prevent that. ठीक है, और अगर वो पहला एक्शन लेती है, in that case stealing will definitely happen again, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी इंस्टेड, बिकॉज हुआ, इग्नोर किया, फिर से होगा. सो 1 इज डेफिनेटली नॉट द एक्शन दैट शुड बी टेकन. ठीक है, दिस इज एट 0 लेवल, यानी कि 0 पे है, ना तो कोई पॉजिटिव एक्शन लिया है, ना ही कोई निगेटिव एक्शन लिया है. तो डेफिनेटली अगर कोई निगेटिव एक्शन लेती है तो उससे ये बेटर होगा, बट किसी भी पॉजिटिव एक्शन से लेस प्रेफरेबल होगा. सेकेंड है, शी शुड कन्फ्रंट विमला एंड टेल हर दैट शी नोज द ट्रूथ. व्हाट ट्रूथ? एंड द एक्ट इज अनपार्डनेबल, यानी कि इन दैट केस शी इज कन्फ्रंटिंग विमला एंड सेइंग दैट विमला हैज स्टोलन द मनी, बट देयर इज ओनली सस्पिशन. कोई प्रूफ नहीं है उसके पास में, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है. सो डूइंग दिस व्हेन शी डज नॉट नो फॉर श्योर दैट विमला हैज स्टोलन द मनी, and if she says so that she knows the truth and the act is unpardonable regardless of her past service and she is thinking of terminating her, this is very rude, very rude and very extreme. And definitely a negative action which should be avoided because she has no proof whatsoever. ठीक है, no proof whatsoever. So this is definitely not the action that she should be taking. So we know कि 1 और 2 तो प्रॉब्लम कर रहे हैं. 1 तो नो सॉल्यूशन है, तो 1 तो ठीक है, बट 2 इज डेफिनेटली द एक्शन दैट शुड नॉट बी टेकन. तो 2 अगर किसी आंसर ऑप्शन में, तो दैट शुड नॉट बी अवर आंसर. ऑल्सो अप्रोप्रिएटनेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर डेफिनेटली तो बी तो पॉसिबल ही नहीं है, इवन ई भी नहीं होगा. बट अभी हमने बाकी ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, तो उनको भी देख लेते हैं. ठीक कह रहा है, शी शुड टेल विमला दैट शी इज अवेयर समवन हैज स्टोलन द मनी फ्रॉम द हाउस बट इज नॉट श्योर हु इट इज. देखो चीज़ क्या है यहाँ पे, उसका सस्पिशन इस बात पे है कि विमला ने मनी स्टील किया है. दैट इज द सस्पिशन. एक फैक्ट ये है कि पैसा मिसिंग तो है पर्स से, तो किसी ना किसी ने तो लिया होगा. ठीक है, अब सिंस उसका सस्पिशन विमला पे है और वो ये चाहती है कि वो प्रिवेंट करे स्टीलिंग दोबारा ना हो, तो इन दैट केस राइट पर्सन कौन है जिससे उसको डिस्कशन करना चाहिए? दैट इज विमला. विमला इज द राइट पर्सन विद हुम शी शुड डिस्कस द कंसर्न. ठीक है, बट राइट वे में करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो समथिंग. तो अगर हम एक्शन नंबर 3 की बात करें, एक्शन नंबर 3 इज सेइंग दैट शी इज टेलिंग विमला दैट शी इज अवेयर समवन हैज स्टोलन द मनी फ्रॉम द हाउस. शी इज अवेयर अबाउट दैट. सो एक तो क्लैरिटी कर दी उसने कि शी नोज दैट सम मनी हैज बीन स्टोलन, बट शी इज नॉट श्योर. इससे होगा क्या?
नाउ विमला ऑल्सो नोज दैट श्रेया नोज, सॉरी पद्मा नोज, ठीक है, विमला ऑल्सो नोज दैट पद्मा नोज दैट सम मनी इज मिसिंग, so she will be cautious, probably not certain but probably this will prevent her from stealing again, chances minimize हो जाएंगे इससे. Also she is not blaming her, तो this is a positive action, blame नहीं कर रही उसको, ठीक है, so this is a positive action, so preferable, definitely preferable. Action number 4 is saying she should share with Vimla that neighbors think that Vimla has stolen the money. She does not, but is interested in finding out the truth. यहाँ पे क्या कर रही है, पद्मा ने किया कि neighbors को बीच में ला दिया कि neighbors think that Vimla has stolen the money and she does not think so, but is interested in finding out the truth. यहाँ पे neighbors को unnecessarily play में ला दिया पद्मा ने. इससे होगा क्या, इससे there is a possibility कि neighbors के साथ में altercation हो जाए विमला का, भाई विमला जाके झगड़ जाए नेबर्स के साथ में, ठीक है, विमला और नेबर्स जो है उनके बीच में झगड़ा हो जाए, और इसका जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदार विल बी पद्मा. सो पद्मा विल बी शोन इन अ बैड लाइट, पद्मा इज बीइंग शोन इन अ बैड लाइट बाय दिस पर्टिकुलर एक्शन, एक्शन नंबर 4, बिकॉज इस पर्टिकुलर एक्शन में ये कहा जा रहा है कि पद्मा समहाउ आग लगा रही है विमला और नेबर्स के बीच में, क्योंकि नेबर्स को बीच में लाके बोल दिया कि नेबर्स कह रहे हैं कि तुमने चुराया है, मैं तो नहीं कह रही, बट मुझे इंटरेस्ट है इस बात में जानने में कि सच क्या है. सो डेफिनेटली दिस इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट ऑप्शन, बट यहाँ पे कन्फ्रंटेशन तो विमला के साथ कर रही है, और दिस इज लेस इनअप्रोप्रिएट एज कंपेयर टू 2. तो 4 इज डेफिनेटली मोर अप्रोप्रिएट देन 2, बट डेफिनेटली लेस अप्रोप्रिएट देन 3, मच लेस अप्रोप्रिएट देन 3. ठीक है, क्लियर है. 5th, she should directly ask Vimla if she stole the money, promising her no punishment if she confesses. This is also a good option. और यहाँ पे विमला को डायरेक्टली कन्फ्रंट भी कर रही है और उससे पूछ भी रही है ये पद्मा दैट इफ शी स्टोल द मनी शी शुड टेल, एंड पद्मा इज प्रॉमिसिंग दैट नो पनिशमेंट इफ शी कन्फेसेस. दिस इज ऑल्सो डिसेंट ऑप्शन, गुड ऑप्शन, ठीक है, बट दिस इज लेस प्रेफरेबल देन 3, बिकॉज यहाँ पे भी शी इज डायरेक्टली सेइंग टू विमला दैट इफ शी स्टोल द मनी, प्रॉमिसिंग हर, ठीक है, सो शी इज प्रॉमिसिंग हर दैट no punishment will be given if she confesses. So 5 is a good option but less preferable than 3. 3 greater than 5 greater than 4. So our answer option will be option D. Is it clear? We know for sure that 3 is the best option. तो 3 बेस्ट ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, उससे भी हमारा ऑप्शन डी मार्क हो जाता है, ठीक है, बट बाकी का ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है. क्लियर है, ठीक है. Also among 1 and 2 we can think that 1 might be more preferable than 2 because 2 is negative. इन अ सेंस 2 से प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ेंगी, एस्केलेट होंगी, और विच इज़ नॉट बेटर देन 1. सो मे बी 1 इज मोर प्रेफरेबल, बट हमें सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 जानने थे, तो 3, 4, 5 विल बी आवर सीक्वेंस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेट पे चलते हैं. नेक्स्ट सेट इज सेइंग मिसेस बिस्वास was to retire in 1 year after serving in the construction department of the Gujarat government for more than 30 years. Mrs. Biswas was working in the construction department of the Gujarat government for more than 30 years. After retirement, she wanted to spend her retired life along with Mr. Biswas, a retired school teacher in a small town in Kerala. They had 2 children, both studying in Bengaluru. So they are out of the equation as such because they are studying in Bengaluru. The Biswas wished to construct a house in Kerala with their life savings. Constructing a house in Kerala with their life savings. The couple gathered information about owning a house in Kerala and they had 4 options. 4 options हैं और somehow हमें उनके बीच में ही वेइन करना पड़ेगा, उनको वे करना पड़ेगा कौन सा बेटर होगा कौन सा वर्स होगा. ऑप्शन नंबर 1 इज सेइंग बाई अ फुली फर्निश्ड हाउस फ्रॉम अ बिग डेवलपर. फुली फर्निश्ड फ्रॉम अ बिग डेवलपर. ऑप्शन 2 सेमी फर्निश्ड हाउस फ्रॉम अ बिग डेवलपर और फिर उसको फर्निश कर लो. ओके. ऑप्शन नंबर 3 इज सेइंग गेट अ लोकल अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस एंड देन फर्निश इट. वो हाउस बना लेगा फिर उसको फर्निश कर लेना. एंड फोर्थ ऑप्शन is Mr. Biswas, with inputs from the family, could supervise the construction of a house back in Kerala by employing the best material, engineers, masons and laborers. So सब कुछ बेस्ट ले लो, ठीक है, सुपरवाइज करो कंस्ट्रक्शन को खुद ही. So that is also option. Question is asking which option would ensure the best control of quality of construction for the Biswas. Very easy question. First question is very easy. Best control of quality चाहिए हमको, ठीक है, कंट्रोल ऑफ क्वालिटी चाहिए, यानी कि क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए हमारी, बाकी कुछ भी हो, कॉस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्वालिटी हमारा बेस्ट होना चाहिए. तो किस ऑप्शन में होगा? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या सारे इक्वल है. हमें ये पता है
कि फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इसमें मिस्टर विश्वास इज सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन, पूरा काम जो सुपरवाइज करने का है वो खुद कर रहे हैं, और he will be employing the best material engineers, masons, laborers, so definitely this is the best option, best among given. बेस्ट कंट्रोल ऑफ क्वालिटी होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 में। क्यों होगा? बिकॉज यहां पे हमारा कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग है, लगातार मिस्टर विश्वास विल बी मॉनिटरिंग, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग है, विच इज मच मच ग्रेटर देन वन टाइम मॉनिटरिंग, जहां पे कि ही विल बी गिविंग द कॉन्ट्रैक्ट टू समबडी एल्स, he will only be a client. Continuous monitoring is much better than one time monitoring. So Mr. Biswas will be client in rest of the cases. बाकी 1, 2 और 3 में देखें तो वहां पे तो सिर्फ एक क्लाइंट रह जाएंगे मिस्टर विश्वास, isn't it so? और कोई और या तो डेवलपर या फिर कॉन्ट्रैक्टर उस हाउस को बना रहा होगा, तो क्वालिटी इंश्योर करना विल बी डिफिकल्ट, बट इन केस ऑफ ऑप्शन 4 दिस इज डेफिनेटली मोस्ट सर्टेन. सो ऑप्शन 4, ऑप्शन डी विल बी अवर आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, इनिशियल इंफॉर्मेशन तो सारी की सारी उतनी ही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ ट्रू वुड इंप्रूव द चांसेस ऑफ द थर्ड ऑप्शन बीइंग अ प्रेफर्ड ऑप्शन. ठीक है, थर्ड ऑप्शन बीइंग अ प्रेफर्ड ऑप्शन. ओके, तो अगर हम पहले वाले केस से बात करते तो हमको ये पता है कि सबसे प्रेफर्ड ऑप्शन क्या है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंट्रोल किस में होगा, बेस्ट कंट्रोल ऑफ क्वालिटी क्या होगा, 4th में होगा. इसके बाद में कौन से ऑप्शन आएंगे, फिर 1 और 2 आएंगे, देन 1 और 2 आएंगे, बिकॉज 1 और 2 में देयर इज अ बिग डेवलपर, और 3 में देयर इज अ लोकल अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर, तो वी कैन नॉट बी वेरी श्योर ऑफ द क्वालिटी दैट ही विल बी प्रोवाइडिंग, वी कैन नॉट बी वेरी श्योर बिकॉज ही इज अनरजिस्टर्ड. ठीक है, वी नॉट डू मच अबाउट इट. और बिग डेवलपर पॉसिबली है कि वो बेटर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन रखेगा, तो 4 इज ग्रेटर देन 1 and 2 and 1 and 2 इज ग्रेटर देन 3. तो ये हमारा ऑर्डर रहेगा. इज इट क्लियर? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ ट्रू वुड इंप्रूव द चांसेस ऑफ थर्ड ऑप्शन बीइंग प्रेफर्ड. यानी कि हमें उस ऑप्शन को चूज करना है, उस क्वेश्चन के ऑप्शन को चूज करना है जहां पे कि थर्ड ऑप्शन का जो प्रेफरेंस है वो इंक्रीज कर जाए. अभी तो लास्ट में आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है 4th, फिर आ रहा है 1 और 2, और 1 और 2 क्योंकि दोनों ही बिग डेवलपर्स हैं, तो उनका जो प्रेफरेंस है वो हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते जब तक हमें बाकी प्रायोरिटीज पता नहीं हो. तो उनका प्रेफरेंस नहीं रख रहे हैं, और फिर रख रहे हैं 3 को. ओके, फिर रख रहे हैं 3 को. 3 थोड़ा सा छुपा जा रहा है, तो छुपाना नहीं है, इसको हम नहीं रखते हैं. सो डेफिनेटली ग्रेटर देन 3. ओके, अब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बेस्ड ऑन द करंट इन्फॉर्मेशन विद नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन द थर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन. नो इट इज नॉट, इट इज द वर्स्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन ऑप्शंस. ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर डेफिनेटली. ठीक है, ऑप्शन बी अमंग लोकल प्रॉपर्टी होल्डर्स द कॉन्ट्रैक्टर इन द थर्ड ऑप्शन एंजॉयज अ गुड रेपुटेशन. तो जो भी लोकल प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर इन द थर्ड ऑप्शन एंजॉयज अ गुड रेपुटेशन डेफिनेटली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात हो रही है, डायरेक्टली उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात कर रहा है, और इससे ही हैज़ अ गुड रेपुटेशन विच इंप्लाइज कि इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रेफरेंस है वो इंक्रीज करेगा. ठीक है, प्रेफरेंस उसका इंक्रीज करेगा, कितना करेगा दैट वी डू नॉट नो, बट डेफिनेटली दिस विल इंप्रूव द चांसेस. तो ऑप्शन बी इज वन ऑफ द ऑप्शंस विच वी विल कंसिडर लेटर ऑन. ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं. सो इतना तो पक्का है कि ऑप्शन बी से हमारा कॉन्ट्रैक्टर के चांसेस तो बढ़ते हैं, प्रेफरेंस तो बढ़ता है, प्रेफरेबिलिटी इंक्रीज करती है. ऑप्शन सी इज सेइंग बिग डेवलपर्स आर लेस ओपन टू चेंजेस इन डिजाइन. ये क्या कर रहा है, ऑप्शन सी हमारा क्या कर रहा है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ऑप्शन सी नहीं है. ठीक है, तो ऑप्शन बी तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रेफरेबिलिटी बढ़ा रहा है. ऑप्शन सी के बारे में बात करेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज सेइंग बिग डेवलपर्स आर लेस ओपन टू चेंज इन डिजाइन. ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 को लेस प्रेफरेबल बना रहा है, बिकॉज बिग डेवलपर्स ज्यादा ओपन नहीं होते चेंजेस डिजाइन के. यानी कि ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 जो हमारे हैं, ठीक है, वो तो अपने ही जगह पे है जहां पे वो है, उन पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट 1 और 2 लेस प्रेफरेबल हो जाएंगे. तो यहां से हमारा 4 और 3 दोनों ही जो है इक्वल पेडेस्टल पे आ जाएंगे. इक्वल पेडेस्टल पे तो नहीं है, 4 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 3, तो ये अभी भी ग्रेटर देन 3 ही रहेगा. 3 के चांसेस पे क्या कोई फर्क पड़ता है इससे, थिंक अबाउट इट. 1 और 2 के चांसेस डिक्रीज हो जा रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा 3 को प्रेफर्ड नहीं बना रहा है, ये 1 और 2 को लेस प्रेफर्ड बना रहा है. ठीक है, तो सी से हमारे 1 और 2 आर लेस प्रेफर्ड. दैट इज व्हाट द चेंजेस. हमें चाहिए वही जिसमें कि इंप्रूव कर रहा हो चांसेस 3 के बीइंग प्रेफर्ड. तो सी की वजह से पॉसिबिलिटी है कि 4 ही चूज हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज 1 और 2 लेस प्रेफर्ड हो जाएगा. ऑप्शन डी मिस्टर विश्वास कैनॉट स्टे बैक अलोन टू सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन.
तो ऑप्शन डी की वजह से जो फोर्थ ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा सीन से, बट तब भी 1 2 तो रहेंगे ना, तो डेफिनेटली स्टिल 1 and 2 आर मोर प्रेफर्ड देन 3। तो ऑप्शन डी भी हमारा आंसर तो नहीं है, क्योंकि 3 का चांसेस को इंप्रूव नहीं करता। ऑप्शन ई, द विश्वास वांट टू सेलेक्ट द फर्नीचर ऑन देयर ओन, फर्नीचर उनको खुद से सेलेक्ट करना है। सो इवन इन दैट केस हमारा 1 और 2 शायद यहाँ पे उसका प्रेफरेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फर्नीचर खुद से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट अगेन 4 इज स्टिल ग्रेटर देन 3, तो यहाँ भी हमारा 3 का जो प्रेफरेबिलिटी है वो इंक्रीज नहीं होता है, इंप्रूव नहीं होता है। सो द ओनली केस जबकि 3 का प्रेफरेबिलिटी डायरेक्टली इंप्रूव हो रहा है इफ ट्रू स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी में अमंग लोकल प्रॉपर्टी होल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड ऑप्शन एंजॉयज गुड रेपुटेशन, तो ये बाकी ऑप्शंस को फर्क नहीं डालता, बट जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है लोकल अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर का, उसको प्रेफरेबिलिटी बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो दैट विल बी आवर आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द केरला गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड अ पॉलिसी, and in that policy, in case of major quality infringement, the builder will pay a penalty of 50% of the price of the house in addition to the price of the house to the client within a year of notice। इस पॉलिसी की वजह से क्या होगा कि जो भी हमारे डेवलपर्स हैं वो कॉशियस हो जाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली अगर उन्होंने क्वालिटी में कोई भी गड़बड़ी की तो फिर उनको 50% हैफ्टी पेनाल्टी पे करना है। एक तो प्राइस ऑफ द हाउस के बराबर तो पे करना ही करना है, 50% एडिशनल पे करना है, यानी कि 150% एक तरह से पनिशमेंट है, 150% फी हो जाएगा उनका, जो पे करना पड़ेगा उनको वापस, पूरा पैसा देना पड़ेगा, 50% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली बिग डेवलपर्स विल बी कॉशियस, तो डेवलपर्स विल ऑल्सो बी कॉशियस टू इंश्योर द क्वालिटी। फॉर दैट ओके, फिर हमें थर्ड ऑप्शन में दिया है लोकल अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट क्या है पकड़ना? अनरजिस्टर्ड, ही इज अनरजिस्टर्ड। तो जो अनरजिस्टर्ड है उस पर कैसे वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे? नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम होगा, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड बिल्डर्स पे ही तो अप्लाई होगी। अनरजिस्टर्ड वाले ने तो पहले से लूपहोल निकाला हुआ है कि भाई पॉलिसी आ भी गई तो भी उसके ऊपर तो काम नहीं करेगी। तो समहाउ ऑलरेडी हमारा थर्ड ऑप्शन जो था वो नॉट मच प्रेफर्ड था। इसके बाद में क्वालिटी के मामले में अगर हम बात करें तो थर्ड विल बी और भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि थर्ड में हम ये इंश्योर नहीं कर पाएंगे, 1 और 2 में पक्का इंश्योर कर पाएंगे। Isn't it so? क्वेश्चन यही पूछा, रैंक इन असेंडिंग ऑर्डर द ऑप्शंस दैट वुड इंश्योर कंट्रोल ऑफ क्वालिटी। असेंडिंग ऑर्डर में हमें रैंक करना है इनको, क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन आएगा असेंडिंग ऑर्डर में? भाई असेंडिंग ऑर्डर में हमको क्या पता है सबसे ज्यादा क्वालिटी किस केस में आएगी, सबसे कम किस केस में आएगी? सबसे कम तो हमें पता चल गया कि अब 3 जो है वो लीस्ट प्रेफर्ड हो जाएगा, बिकॉज वहां पे बिल्कुल भी हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे। बट बाकी सारे ऑप्शन में अब क्वालिटी बेटर इंश्योर्ड होगी, यानी 1 और 2 में भी बेटर इंश्योर्ड होगी, तो डेफिनेटली लीस्ट प्रेफर्ड विल बी ऑप्शन 3। तो सी हमारा आंसर हो गया क्लियरली, क्योंकि ऑप्शन 3 हमारा सिर्फ एक में ही आ रहा है, 3 देन 1 एंड 2 देन 4। क्लियर है? ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? सो दिस इज द सेकंड सेट। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके बाद में, एक जो सिंगल क्वेश्चन आया है 2017 में उसको कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सो दैट क्वेश्चन, जीनियस कंसल्टिंग इज अ boutique consulting firm started by Shirish, Balram, Rahman and Xavier, 4 friends from Premier Business School. They committed themselves to abide by 2 principles, not to indulge in anything unethical and share earnings equally. तो 2 principles हैं उनके। फर्स्ट इज किसी भी अनएथिकल चीज में इंडल्ज नहीं करना है, और जो भी अर्निंग्स होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में इन देयर Genius Consulting, that is boutique consulting firm. Genius Consulting could not get a significant project till the following year when they managed a big one after Rahman's father referred their firm to his top management. Convinced of the team's talent following an impressive presentation, the top management awarded them the project even though 6 other referred teams made presentations. The day following the presentations, they met to decide the way forward for the organization. Which of the following choices could be the most appropriate for Genius Consulting? We have to choose the most appropriate choice among the given choices. Option number A is saying, as this project violates both their principles, Genius Consulting should not take up the project. Option B is saying, due to the violation of the first principle, Genius Consulting should not take up this project.
इज इट एक्चुअली वायलेटिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल? थिंक अबाउट इट. फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा नॉट टू इंडल्ज इन एनीथिंग अनएथिकल. हुआ क्या, रहमान के फादर ने रेफर किया है, देयर फर्म हैज बीन रेफर्ड बाय रहमान्स फादर टू द टॉप मैनेजमेंट, एंड आफ्टर दैट देयर वॉज एन इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन. इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, प्रेजेंटेशन ने इंप्रेस किया टॉप मैनेजमेंट को, एंड दैट इज वाई दे वर कन्विंस्ड ऑफ द टीम्स टैलेंट. तो प्रेजेंटेशन दिया है, पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया है, जो भी प्रेजेंटेशन दिया होगा, ठीक है, और उसके बाद में दे आर कन्विंस्ड ऑफ टैलेंट. So there is nothing unethical about it. They were referred and they did make a good job of that referral, provided an impressive presentation and convinced the top management. So definitely यहाँ पे there is nothing unethical. This is completely ethical. Unethical जैसी तो कोई भी बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है. So referral is not actually anything unethical. अगर बिना किसी और शो के, यानी कि बिना किसी प्रेजेंटेशन के और डायरेक्टली इनको ले लिया जाता, बाकियों के ऊपर प्रेफर कर दिया जाता, तब ये चीज़ें अनएथिकल होती. बट इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, बाकी लोगों ने भी, और भी 6 टीम्स ने अपना प्रेजेंटेशन दिया. दे वर बेस्ट अमंग दोज गिवन, दैट इज वाई दे हैव बीन अवॉर्डेड द प्रोजेक्ट. सो दिस इज कंप्लीटली एथिकल. ए और बी हमारे आंसर नहीं होंगे. एथिकल है तो क्यों प्रोजेक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले तो मिल भी नहीं रहा था उनको, मिला है तो मौका हाथ से क्यों जाने देंगे, डेफिनेटली करेंगे. तो ए और बी आर नॉट द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. सी कह रहा है दे शुड टेक अप द प्रोजेक्ट फर्दर सिंस रहमान हैड एग्रीड टू इक्वल शेयरिंग, ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू फाइंडर्स फी. D is saying they should take up the project and as the referral help them survive, Rahman should be paid finder's fee. E is saying they should take up the project, but in order not to violate the principles, Rahman can be paid finder's fee this year and an equal amount be deducted from his compensation the next year. Okay. पहली चीज तो ये है कि रहमान ने प्रोजेक्ट नहीं दिलाया, रहमान्स फादर रेफर्ड देम. तो इट इज नॉट रहमान बट रहमान्स फादर. सो अगर रहमान के फादर ने रेफर किया है तो फाइंडर्स फी अगर किसी को मिलनी भी चाहिए, दैट शुड बी रहमान्स फादर एंड नॉट रहमान. इज इट क्लियर? सो दैट इज वाई द आंसर शुड बी ऑप्शन सी. ठीक है, देयर इज नो चांस ऑफ रहमान गेटिंग द finder's fee. They should take up the project and further since Rahman had agreed to equal sharing, he is not entitled to finder's fee. Also he should not be getting because रहमान के फादर ने रेफर किया है, so possibility अगर बनती भी तो रहमान के फादर के लिए बनती, और otherwise also since they are also committed to second principle which is share earnings equally, तो इन लोगों के, इन 4 लोगों के बीच में किसी को भी फाइंडर्स फी नहीं मिलना चाहिए. अगर रहमान ने भी ये प्रोजेक्ट रेफर किया होता तो इन दैट केस ऑल्सो ही शुड नॉट बी इंटाइटल्ड टू द फाइंडर्स फी, बिकॉज अल्टीमेटली ये 4 लोग तो अपनी कंपनी के लिए तो भाई तुम प्रोजेक्ट फाइंड आउट करोगे ही करोगे ना, ठीक है ना. सो यू आर इन पार्टनरशिप, यू आर नॉट समबडी एल्स, सो यू विल नॉट बी गेटिंग फाइंडर्स फी फॉर योर ओन कंपनी. क्लियर है? तो ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर इन दिस केस. इज इट क्लियर? समझ में आती है बात ये? ठीक है. नाउ कमिंग टू द 2 क्वेश्चंस जहाँ पे कि बच्चों को काफ़ी डाउट आ रहा था, तो उन पे भी छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं. एक क्वेश्चन था जो कि क्रिकेट टीम से रिलेटेड है. देखो क्रिकेट टीम वाले केस में जो हमने लास्ट सेशन में किया था ये वाला क्वेश्चन, जहाँ पे कि 100 स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी कोच वाज आस्क्ड टू सेलेक्ट टीम्स इन 3 स्पोर्ट्स, शूटिंग, क्रिकेट और स्नेक एंड लैडर में. अब कुछ बच्चों ने यही पूछा कि बॉलर के बारे में नहीं सोचेंगे क्या? बिल्कुल सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्रिकेट और आगे लिखा है साफ साफ बैट्समैन ऑनली. ठीक है, यानी कि हमें जो टीम सेलेक्ट करनी है क्रिकेट में, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन पे फोकस करना है, हमें 11 बैट्समैन ही चाहिए. तो फिलहाल ये क्वेश्चन हमसे नहीं चाह रहा है कि हम बॉलर के बारे में सोचें, तो क्योंकि क्वेश्चन नहीं चाह रहा है इसलिए हम बॉलर के बारे में नहीं सोचेंगे. क्लियर है? हमें सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन पे फोकस करना है कि 11 अच्छे बैट्समैन चाहिए, फिर उनसे बॉलिंग हम उनको सिखा देंगे बाद में. ठीक है, कोच उनको बाद में बॉलिंग सिखा देगा, अभी फिलहाल उनको बैटिंग स्किल होनी चाहिए उनके अंदर. ठीक है, और बैटिंग का हमारा टेस्ट क्या है? क्वेश्चन में टेस्ट दिया है बैटिंग का कि इन क्रिकेट अ बैट्समैन फेस्ड अ मैक्सिमम ऑफ 100 बॉल्स, यानी कि सबने 100 बॉल्स फेस नहीं किए हैं, मैक्सिमम ऑफ 100 बॉल्स, प्रोवाइडेड ही डिड नॉट गेट आउट. तो कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने कि 2-4 बॉल फेस की और आउट हो गया. बट क्या क्रिकेट अगर आपने फॉलो किया है, फॉलो करते हो, तो यू मस्ट नो कि 2-4 बॉल फेस करके अगर कोई आउट हो गया है तो जरूरी नहीं है कि वो एक खराब बैट्समैन हो. इट माइट जस्ट बी अ बैड डे. तो कुड बी अ बैड डे. ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने लेटेस्ट से, जिसको कि 0 से 9 में एक ही स्टूडेंट है वैसे तो यहाँ पे, ठीक है, बट 10 से 19 में 8 है, तो लेटेस्ट से किसी ने 8 बॉल्स फेस किए, ओनली 8 बॉल्स. ठीक है, और 8 बॉल्स में से 7 उसने बाउंड्रीज मारी हैं और 8th पे वो आउट हो गया. ठीक है, तो 7 बाउंड्रीज आर सिग्निफिकेंट रन्स. और ऐसा हो सकता है कि किसी ने 90 बॉल्स फेस किए, 90 बॉल्स फेस किए, और 90 बॉल्स में से
80 to 85 बॉल्स में उसने कुछ भी स्कोर नहीं किया, नो स्कोर व्हाटसोएवर, नो बाउंड्री व्हाटसोएवर, बाकी में भी कोई बाउंड्री नहीं आई है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, कि बस टिका रहा है वो, ठीक है, आउट नहीं हुआ, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो हमारे लिए किसको चूज करना बेटर होगा, जो 8 बॉल में 7 बाउंड्री मार रहा है, या इसको चूज करना? तो बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ किसी ने कितनी बॉल्स फेस की हैं और कब वो आउट हुआ है, कब नहीं आउट हुआ है, इससे हम जज नहीं कर सकते कि कौन बेटर बैट्समैन है। बेटर बैट्समैन होने के लिए रन बनाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। किसने कितने रन बनाए हैं, और ज्यादा इनिंग्स में डिसाइड कर पाएंगे, सिर्फ एक इनिंग में डिसाइड भी नहीं कर सकते, इजंट इट सो? ठीक है, तो डेफिनेटली शूटिंग वाला जो केस था वहां पे तो हमें पता चल रहा है, बिकॉज शूटिंग इज अ स्किल, जहां पे कि आपको एक एक शॉट पे देखना है और वहां पे एक्यूरेसी पता चल रही है आपको, और हर एक को 100 शॉट का मौका मिला है। ऐसा नहीं हुआ कि एक शॉट मिस हुआ तो आपको गायब कर दिया। यहाँ पे 100 बॉल फेस करने का मौका सबको नहीं मिला है, रन्स के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई 4-5 बॉल, 10 बॉल, 15 बॉल के बाद में आउट हो गया तो उसको पूरी बॉल्स फेस करने को भी नहीं मिली है, क्लियर है? तो डेफिनेटली उसको पॉइंट्स पूरे नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स के बेसिस पे जज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पॉइंट्स आर नॉट इक्विवेलेंट टू रन्स, एंड दैट इज वाई वी कैन नॉट एब्सोल्युटली जज फॉर एनी क्राइटेरिया, एनी कैटेगरी। हम 0 to 9 के केस में भी जज नहीं कर सकते, बिकॉज हो सकता है उसने जो 7 या 8 बॉल्स खेली हैं या जितनी बॉल्स खेली होंगी उसमें बाउंड्रीज मारी हो और वो फिर अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया हो। तो डिपेंड्स ऑन अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स। वी नीड टू नो कि रन्स कितने स्कोर किए होंगे। सो डेफिनेटली क्रिकेट के केस में हमारे लिए ना तो आंसर ए ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज ए कह रहा है कोच शुड नेवर सेलेक्ट द प्लेयर इन द रेंज ऑफ 0 to 9, बट हमको पता नहीं है 0 to 9 वाला जो है, 0 to 9 पॉइंट्स जिसको मिले हैं, एक्चुअल में रन उसने कितने स्कोर किए हैं। हो सकता है उसने रन्स बहुत अच्छे स्कोर किए हो सकता है बेस्ट ऑफ देम ऑल स्कोर किए हो, या फिर बेस्ट ऑफ देम ऑल ना भी किए हो, तो 70-79 से ऊपर वालों से ज्यादा रन स्कोर किए हो, पॉइंट्स उसके कम रह गए क्योंकि वो आउट जल्दी हो गया, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर, डेफिनेटली ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर, कि हम कुछ भी इससे जजमेंट नहीं ले सकते क्रिकेट के लिए। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। और बॉलर्स के बारे में मेंशन नहीं किया, साफ साफ लिखा है बैट्समैन सेलेक्ट करनी है, तो इसलिए बॉलर को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इन जनरल क्रिकेट में ऑब्वियसली बॉलर्स की जरूरत पड़ती है, बॉलर्स बैट्समैन सभी चाहिए, ठीक है, विकेट कीपर भी चाहिए, बट उनके बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो शायद उनको बाद में सिखाने का प्लान होगा, जो भी होगा वो क्वेश्चन जाने, बट अल्टीमेटली हमें जो कहा गया है हमें वो काम करना है, बैटिंग के बारे में बात करनी है। तो बैटिंग में रन्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन पॉइंट्स, जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। तो डेफिनेटली वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस डिसीजन फ्रॉम दिस टेबल ऑफ पॉइंट्स, क्लियर, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन और था हमारा, जहां पे कि दिस क्वेश्चन ऑफ हॉस्पिटल वाला, कि जहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस इज मोस्ट लाइकली टू सेटिस्फाई ऑल द स्टेक होल्डर्स। इसमें काफी लोगों को डाउट है कि सर सी आंसर क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा, ठीक है। डी तो हमें पता है कि डी में रिड्यूस द वेटिंग टाइम के बारे में बात कर रहा है, और हमें पता है कि पूरे के पूरे पैसेज में कहीं पे भी वेटिंग टाइम के बारे में बात नहीं हो रहा है, वेटिंग टाइम के बारे में कहीं पे भी बात नहीं हो रहा है। सी हमारा बात कर रहा है नंबर ऑफ पैरामेडिक्स के बारे में, कि इंक्रीज द नंबर ऑफ पैरामेडिक्स, इंक्रीज करो इनकम ऑफ डॉक्टर्स का और इंक्रीज करो नंबर ऑफ पैरामेडिक्स को। तो इनकम ऑफ डॉक्टर्स तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में भी इंक्रीज हो रहा है। डिफरेंस जो है ए और सी में कर रहा है इंक्रीज नंबर ऑफ पैरामेडिक्स, सी में कर रहा है इंक्रीज नंबर ऑफ पैरामेडिक्स, जबकि ए में इंक्रीज कर रहा है इनकम ऑफ पैरामेडिक्स। और हमें पता है कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, डॉक्टर्स स्टेक होल्डर है, ठीक है, पैरामेडिक्स स्टेक होल्डर है, मैनेजमेंट तो स्टेक होल्डर है ही है, और साथ में पेशेंट्स भी स्टेक होल्डर है। कुछ लोगों को ये भी डाउट था कि पेशेंट स्टेक होल्डर होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा, बिकॉज जैसी भी हेल्थ सर्विसेज रहेंगी ये पेशेंट को फर्क डालती हैं। पेशेंट इज अ स्टेक होल्डर, नॉट अ डायरेक्ट स्टेक होल्डर, उसको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है, बट वो फी पे कर रहा है और अल्टीमेटली उसको सर्विसेज मिलने वाली है। तो डेफिनेटली पेशेंट इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर इन एनी हेल्थ केयर सिस्टम, चाहे वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हो या फिर प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम हो। तो पेशेंट डेफिनेटली एक स्टेक होल्डर है, एंड एज आई सेड ही इज अ स्टेक होल्डर बट नॉट अ डायरेक्ट स्टेक होल्डर, यानी कि प्रॉफिट वगैरह उसको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बट साथ में एक चीज़ और है कि हमारा जो संचित ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है ये भी चाहता है सीक्स टू इंप्रूव सक्सेस रेट एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन रेट। तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती है। तो मैनेजमेंट भी चाहता है कि पेशेंट सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करे, क्लियर है, ये मैनेजमेंट भी चाहता है कि पेशेंट सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करे। तो इस केस में भी हमारा मैनेजमेंट का भी डिजायर है कि पेशेंट सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करे। तो मैनेजमेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है, जस्ट केस एनी कंफ्यूजन, कि पेशेंट सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करना चाहिए। और एमबीएस ऑफ हॉस्पिटल से फर्क पड़ेगा, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट एडिशनल, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन है, बाकी चीजें हो रहा है। डॉक्टर की इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं, डॉक्टर सेटिस्फाई हो जाएंगे। पैरामेडिक्स की इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं, तो पैरामेडिक्स को भी खुश होना, सेटिस्फाई होना है, दुखी क्या होंगे इससे, ठीक है। जिसकी भी इनकम इंक्रीज हो वो तो दुखी तो नहीं होगा, सेटिस्फाइड ही होगा। तो पैरामेडिक्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। और नंबर ऑफ पैरामेडिक्स इंक्रीज करने की जरूरत है कि नहीं है, ये पैसेज में कहीं पर भी मैंशन हमारा नहीं है। पैसेज हमारा कह रहा है कि डॉक्टर्स ये कहते हैं, डॉक्टर्स का ये फीलिंग है, डॉक्टर्स फील द मैनेजमेंट शुड इंक्रीज कंसल्टेंसी फी एंड स्पेंड मोर ऑन रिक्रूटिंग मोर पैरामेडिक्स। बट ऐसा कुछ
पैसेज में मेंशन नहीं है कि एक्चुअल में पैरामेडिक्स को बढ़ाने की कोई ज़रूरत है। डॉक्टर्स का ये फीलिंग है कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है, पर वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो एज सच कितना क्वेश्चनेबल है, कितना श्योर है, वी डू नॉट नो कि नंबर ऑफ पैरामेडिक्स को इंक्रीज करेंगे कि नहीं करेंगे। दैट इज वाई ऑप्शन सी को नहीं चूज करेंगे, बिकॉज अगर नंबर ऑफ पैरामेडिक्स को मान लो तुमने बढ़ा भी दिया तो क्या ये डॉक्टर्स को सेटिस्फाई करेगा? डॉक्टर्स की इनकम बढ़ा दोगे वो उनको सेटिस्फाई कर जाएगा, पैरामेडिक्स की सैलरी बढ़ा दोगे वो उनको सेटिस्फाई कर जाएगा, पैरामेडिक्स का नंबर बढ़ाओगे तो पैरामेडिक्स सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है। एंड वी डू नॉट नो कि नया नंबर की यानी नए एडिशनल पैरामेडिक्स की जरूरत है कि नहीं है, तो पेशेंट भी सेटिस्फाई होंगे कि नहीं होंगे, वो तो इस पर डिपेंड करेगा कि ऑलरेडी अगर पैरामेडिक्स कम होते तब नंबर बढ़ाना पेशेंट को सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज नंबर बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बढ़ने वाली है, जो कि मैनेजमेंट को भी डिससेटिस्फाई करेगा। हो सकता है पेशेंट्स के लिए कोई फर्क ही ना पड़े इससे, और डॉक्टर्स वगैरह को भी इससे कोई फर्क ना पड़े। तो नंबर ऑफ पैरामेडिक्स इज नॉट द क्राइटेरिया ऑन विच वी विल बी जजिंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, एंड दैट इज वाई ऑप्शन सी इज नॉट द राइट आंसर एंड ऑप्शन ए इज द बेस्ट अमंग देम ऑल, एंड दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द प्रेफर्ड आंसर। क्लियर है? ऑल्सो जब भी हम डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस को करेंगे तो डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चंस में कई बार ऐसा होगा, हमेशा तो नहीं होगा बट हमेशा 2018 से पहले जैट कोई भी ऑफिशियल आंसर की नहीं देता था, तो ऑफिशियल आंसर की वॉज मिसिंग, तो हमें नहीं पता एग्जैक्ट आंसर हर एक क्वेश्चन का क्या है। दैट इज वाई हर ईयर एक या दो ऐसे सवाल जरूर होते हैं जिन पे कि आंसर में डाउट होगा, ठीक है, जिनमें आंसर में श्योरिटी नहीं होगी। कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कोई आंसर ऑप्शन दिया होगा, किसी ने कुछ आंसर ऑप्शन दिया होगा, तो हमें ऐसा उन एक दो क्वेश्चंस पे अपना पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि सर इनमें क्या हुआ, इसमें इसने ये आंसर दिया, उसने ये आंसर दिया है। तो ऐसा एक दो क्वेश्चंस में हर ईयर में होगा, ठीक है। उन एक दो क्वेश्चंस पे हमें फोकस नहीं करना है, बाकी जो 19-20 क्वेश्चंस रह गए हमारे 19-20 क्वेश्चंस और रह गए, उन पे फोकस करना है और उन एक दो क्वेश्चन से भी लर्निंग लेना है। हमें क्या करना है, इनसे की लर्निंग लेना है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट थोड़ी होंगे, ठीक है। सो सिर्फ लर्निंग लेना है, इनसे सीखना है, और इनसे सीखोगे तो तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इस पर एम्फोसाइज नहीं करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क्या होगा, बिकॉज वो तो पता नहीं लग सकता। जैट ने ऑफिशियल आंसर की रिलीज नहीं किया है, तो वी कैन नेवर नो अबाउट दैट कि उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑल्सो मैटर यही करता है कि जैट का ऑफिशियल आंसर क्या है, इवन इफ कोई और कुछ अलग सोचता है तो, इजंट इट सो। जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर डिसीजन मेकिंग में तो ऐसा नहीं होगा, बट लास्ट ईयर ऐसे डीआई में 2 क्वेश्चन थे जिन पे कि अल्टीमेटली एडिशनल मार्क दिए जैट में, ठीक है, और एक और क्वेश्चन था। टोटल 3 क्वेश्चंस थे जिन पे कि 3 मार्क्स मिले थे, सबको अवार्ड हुए थे। तो कई बार ऐसा होता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे कि सब्जेक्टिविटी होगा, जहाँ पे कंफ्यूजन अराइज होगा, जहाँ पे जो लैंग्वेज होगी क्वेश्चन की वो फंसाएगी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन में, वैसे क्वेश्चन में एक डेफिनेट आंसर होना चाहिए, ठीक है, जब तक वो बहुत ज़्यादा फंसाने वाला ना हो। और जब ऑफिशियल की ही रिलीज नहीं होगा तो वहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन का पंगा ही नहीं बनता है, मतलब कोई क्या ही उसमें ऑब्जेक्शन रेज करेगा, तो ऑब्जेक्शन रेज करने का पॉसिबिलिटी भी नहीं था उन सालों में। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपको अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना, अपना एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, अपने एनर्जी और टाइम को सही डायरेक्शन में लगाओ। अपना जो हर एक क्वेश्चन से है वो की लर्निंग को लो, सो दैट तुम एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो वहाँ पे अप्लाई कर पाओ, ठीक है। चाहे जहाँ पे भी जो भी क्वेश्चन दिखे वहाँ पे क्वेश्चन में जो चीज़ गलत दिख रही है उसकी वजह से अटकना नहीं है तुमको, ठीक है। तुमको जो सही देखना है वो सही देखो, ठीक है। अपना जो विजन है उसको सही करो, क्लियर है? तो सही डायरेक्शन में देखोगे, की लर्निंग जो लोगे और क्वेश्चन के आगे बढ़ो, छोड़ दो उसको। अगर कंफ्यूजन है वहाँ पे, जो भी तुमने सीख लिया, सीख के आगे बढ़ो और अपने आप को बेहतर यूटिलाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, और इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि आगे अगर किसी क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन आता है तो कंफ्यूजन को नहीं पकड़ना है, आपको उस क्वेश्चन की लर्निंग को पकड़ना है। क्लियर है? ठीक है। और जो छोटे छोटे कंफ्यूजन अराइज हुए थे इन क्वेश्चंस में वो भी हमने डिस्कस कर लिया। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करना है, अगर कहीं पे फिर भी डाउट रह जाता है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट, एंड अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेशन। सी यू इन अनदर। बाय बाय, टेक केयर।